students, in the previous video we have studied about our fundamental rights. We studied in detail right to equality and right to freedom. Now today we will study about right against exploitation. So the teacher says, I have told you about the incident of equal wages for equal work. Lalita had said that the contractor could not exploit her. The right against exploitation protects the citizens against exploitation without any discrimination. According to this right, nobody can be forcefully made to do work, or if a person wants to leave a work and do some other work, he cannot be stopped. Apart from this, he cannot be made to work under unjust circumstances and under payment. Bonded labor of any form is illegal because the labor is forced to work for the jamidar, which is an exploitation of his fundamental right. The Constitution also states that children under the age of 14 years should not be employed, should not be in factories or mines or any other hazardous jobs. Likewise, it is wrong to employ children to work in carpet making, Bengal industries, match factories, etc. Right to freedom of religion. The Indian Constitution has given every citizen the right to worship, practice and propagate his or her own religion. No person can be stopped from practicing their religion in their own specific ways. Everybody has the freedom to practice it according to their liking. Cultural and educational right. This is our fifth fundamental right, and very important, cultural and educational rights. People speaking different languages reside in India. They have their own cultures. Our Constitution gives every community the right to protect its own language, culture and script. Minorities based on religion or language have the right to open educational institutions. The government provides help to such institutions without any discrimination. Now next and last fundamental right is right to constitutional remedies. The Constitution of India guarantees fundamental rights to all the citizens of India. Therefore, the protection of these rights are effectively mentioned in the Constitution itself. The government or any other individual cannot encroach upon these rights. The Constitution gives every citizen the right to go to the court in case he is deprived of any of his fundamental rights. The judiciary protects the fundamental rights. During emergency, the government can suspend the fundamental rights. So here is right against exploitation, that means शोषण के विरुद्ध अधिकार. इसमें जैसे कि आपने वो वाली स्टोरी में देखा, टीचर ने बताया कि ललिता के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर था वो शोषण कर रहा था, उसकी पूरी मजदूरी नहीं दे रहा था. तो इसका यह है कि लेकिन उसने आवाज उठाई और उसको उसका अधिकार देना पड़ा. इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं ले सकेगा, और यदि कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम करना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता. उसकी जो कम मजदूरी नहीं दी जा सकती, और यदि उसकी परिस्थितियां खराब हैं, उसकी तबीयत खराब है, कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें वो काम नहीं कर सकता, जबरदस्ती उससे काम नहीं करवाया जा सकता. जैसे पहले बंधुआ मजदूरी होती थी, उस तरह का टोटल समाप्त हो चुका है. बंधुआ मजदूरी जो है वो
मौलिक अधिकारों का हनन करता है और अब उसे कोई भी नहीं कर सकता। पहले जमींदार और ठेकेदार इस तरह से करवाते थे, लेकिन अब नहीं हो सकता। 14 ईयर्स से कम जो बच्चे होते हैं उनको भी कारखानों में, खदानों में कहीं ऐसे खतरे वाले काम उनसे नहीं करवाए जा सकते। कांच की चूड़ियां हैं, माचिस से फैक्ट्रीज हैं, मैच फैक्ट्रीज हैं, इन सारी जगहों पर उनसे काम नहीं करवाए जा सकते। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा जो संविधान है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जिसको जो भी धर्म मानना हो, जिसकी भी पूजा करना हो, वो सभी उसके लिए स्वतंत्र हैं और कोई भी व्यक्ति अपने धर्मों का, अपने रीति रिवाजों का पालन कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक रीति रिवाजों के पालन करने से नहीं रोका जा सकता। सभी अपने अपने तरीके से उपासना करने के लिए, भगवान की प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र हैं। नाउ 5th इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हमारा संविधान सभी को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को निभाने की और उसको फॉलो करने की इजाज़त देता है। और यदि वो अपनी संस्कृति को रिटन में सुरक्षित करना चाहता है, लिपिबद्ध करना चाहता है, तो उसका भी अधिकार हमारा संविधान देता है। धर्म या भाषा पर को अलग अलग धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं जिनकी संख्या कम है। ऐसे धर्म को मानने वाले लोग जो अल्पसंख्यक में आते हैं वो अपने धर्म के लिए शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, ये उनको अधिकार है। और इस तरह की विभिन्न सहायता, इस तरह की विभिन्न संस्थाओं के लिए जो गवर्नमेंट होती है वह हेल्प भी करती है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो भारत का संविधान है समस्त नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है कि उनके जो अधिकार हैं वह सुरक्षित रहेंगे और लोग यहाँ पर स्वतंत्रता से जी सकते हैं। और इससे सरकार या कोई भी नागरिक जो है दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का नुकसान नहीं कर सकता, उन अधिकारों को छीन नहीं सकता, उनका हनन नहीं कर सकता। संवैधानिक जो उपचार है इसके अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों के हनन होने पर यदि उनको लगता है कि उनके अधिकारों को छीना गया है तो वह न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय जो है उनके मौलिक अधिकारों की, उनके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। इमरजेंसी के समय में, संकट काल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को स्थगित सरकार कर सकती है। In the next video, we will study about special provisions for women. So, students, we have studied about 6 fundamental rights in this video.